औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। Dear first year student, in today's lecture we will highlight the importance of the Drake force which we discussed before in Stokes law. Terminal velocity attained by a body or object falling through fluids. How paratrooper falls towards the earth, and what is the importance of the terminal velocity in our day-to-day life. प्यारे तलबा, आज के इस लेक्चर में ड्रेक फोर्स की अहमियत के बारे में हम पढ़ेंगे। एक बॉडी पे टर्मिनल वेलोसिटी कैसे आ जाती हैं जब वो फ्लूइड में गिरती हैं या फ्लूइड में मूव करती हैं। पैराट्रूपर किस तरह फंक्शनिंग करता है, पैराट्रूपर कैसे इतनी हाइट से सेफली ज़मीन पे पहुंच जाता है, ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर का हिस्सा होगी। So now come to terminal velocity. Terminal velocity. What a terminal velocity is? Terminal velocity is the maximum constant velocity attained by freely falling object when its weight is balanced by air drag. The maximum constant velocity attained by freely falling object when its weight is balanced by air drag is called terminal velocity of a body or object. टर्मिनल वेलोसिटी ये मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है जो कि एक बॉडी अटेन करता है जब वो फ्लूइड में गिरता है या फ्लूइड में मोशन करता है। इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी when the forward directed force are balanced by backward directed force. जब आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स और बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक दूसरे को इक्वलाइज कर दे तो नेट फोर्स बॉडी पे ज़ीरो हो जाएगा और बॉडी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो नेट फोर्स उस पर क्या होती है, ज़ीरो, या अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो क्या होता है, नेट फोर्स उस पर क्या होता है, ज़ीरो होता है। सो द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी व्हेन द अप्लाइड फोर्स becomes equal to the resistive force, then this velocity is called terminal velocity of. For example, if you are driving a motorcycle, slowly you are increasing the speed of the motorcycle, air drag, air resistance is acting in the opposite direction to the applied force of the engine. So when you are making motorcycle faster and faster, the air resistance will goes on increasing, which we call drag force, till the time when the motorcycle engine force becomes equal to the air resistive force,
then the motorcycle will move with a constant velocity, and that constant velocity is called terminal velocity. तो टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बात ये हो गई कि जब एक बॉडी फ्लूइड में मूव करता है तो एक बॉडी का अप्लाइड फोर्स होता है एक डायरेक्शन में, जबकि फ्लूइड का फोर्स दूसरे डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो उसमें एक्सेलरेशन होती है और वेलोसिटी चेंजेबल होती है। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि इसमें अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो जाते हैं, तो नेट फोर्स ज़ीरो हो जाते हैं। लेकिन न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक चूंकि बॉडी मोशन में है तो वो अपनी मोशन की हालत को बरकरार रखेगा, लेकिन अब कांस्टेंट वेलोसिटी से, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी क्या कहलाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। सो टर्मिनल वेलोसिटी is the maximum constant velocity attained by an object when the applied force becomes equal to the resistive force of the fluid. Then the velocity becomes constant, and that constant velocity is called terminal velocity. Now come to expression for the terminal velocity of the body. For that, consider a spherical object of radius r is initially at rest. 8 point A is shown in the figure. You see, this is a particle, the cursor. This is a particle, 8A. Initially, it is at rest. And you know the drag force is 6 pi eta rv. When velocity is 0, there will be no air resistance over here. So 8 point A, there is only force acting on the body which is equal to the weight of the body. Weight of the body. In this case, net force will be equal to mg, 8 point A. When देखो आपने देखा कि the drag force at point A will be 0, A's V is 0 and hence sigma F आपके पास क्या होगा? mg minus 0, तो क्या आ जाएगा? mg आ जाएगा। In 8 point A there is only one force acting on the droplet, that is mg. Now when the droplet is falling freely, it speeds up with time and hence the opposing force also increases. देखो जब आपने इसको गिरा दिया तो ड्रैग फोर्स सींग निकालना शुरू कर देता है, ड्रैग फोर्स वजूद में आना शुरू कर देते हैं, एयर के पार्टिकल उसको धक्का देते रहते हैं ऊपर की जानिब। जब धक्का देते हैं तो रेजिस्टिव फोर्स क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। द रेजिस्टिव फोर्स इज इंक्रीजिंग and hence drag force also is increasing, but weight is greater, so the particle or the droplet is accelerating downward with acceleration. So while जब ये फ्रीली फॉल करता है तो ड्रैग फोर्स, जिस तरह मोटरसाइकिल वगैरह की मिसाल है, जितनी स्पीड तेज़ होती है तो एयर रेजिस्टेंस आप पे बढ़ती जाए, इतना इसी तरह ड्रॉपलेट जितना स्पीड उसका तेज़ होता जाएगा ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा। और एक वक्त जो नेट फोर्स है अभी जो है जब उसमें एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स जो ड्रॉपलेट पे अभी अमल कर रहा है, फ़र्ज़ करें 8 पॉइंट बी, तो वो क्या होगा? सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू एम जी माइनस एफ डी, एम ए इज़ इक्वल टू एम जी माइनस एफ डी आ जाएगा। तो ए जो है एम जी माइनस एफ डी डिवाइडेड बाई एम आ जाएगा। ए विल कम आउट टू बी एम जी माइनस एफ डी. Initially when it was at point A, there was only force acting which was weight. Now when it is falling, drag force is also acting and the acceleration is mg minus fd divided by m. So when the drag force is acting on the droplet, then the net force in this case will be mg minus fd. mg is downward, fd is upward, so net force is ma mg minus fd, so the acceleration will be mg minus fd divided by m. This is accelerated region.
meaning that there will be acceleration whenever the velocity of the falling droplet is increasing, and the net force will be acting on it, and it will not be zero. It will not be zero. Now, when it is falling, you know, drag force is increasing slowly and gradually. A time will reach that the two forces will equalize each other. What I mean from equalize each other? The downward force weight and the upward force called drag force, when they become equal to each other, the net force will become zero, but the body will move with a constant velocity. That constant velocity will now be called terminal velocity. जब ड्रॉपलेट नीचे आता है तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है. एक वक्त ऐसा आ जाता है कि अपवर्ड ड्रैग जो है 6 पाई ईटा आर वी है, तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो ड्रैग भी बढ़ता जाता है, तो ड्रैग फोर्स बढ़ता जाता है, वेट तो वही होता है, तो वेट और ड्रैग फोर्स एक लम्हे पर ऐसे आ जाते हैं कि एक दूसरे को बराबर कर लेते हैं. जब एक दूसरे को बराबर कर लेते हैं तो नेट फोर्स उस पर जीरो होता है. लेकिन न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक चूंकि ये बॉडी मोशन में थी या पार्टिकल मोशन में था या ड्रॉपलेट मोशन में था, तो ये अपनी मोशन की हालत को बरकरार रखेगी, लेकिन अब कांस्टेंट वेलोसिटी से. और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं. क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी. सो व्हेन द ड्रैग फोर्स एंड द वेट of the body becomes equal to each other, at that instant the net force acting on the droplet will become zero, and now the droplet will be falling with a constant velocity, and that will be the maximum velocity that can be attained by the droplet, and that is what we call terminal velocity. Terminal meaning that further changes in velocity are being terminated, further changes in velocity are being stopped, and now the body is moving towards the earth with a uniform or constant velocity till it kisses the earth. So that uniform velocity will be called terminal velocity of the body. So देखो, the net force acting on the droplet is now zero. When the droplet move with a constant, then the droplet will move with a constant uniform velocity called terminal velocity. Now sigma f is equal to mg minus fd is equal to 0. So fd is equal to mg. Now 6 fd drag force किस बार 6 pi eta r vt. Vt is terminal velocity, 6 pi eta r vt, and that is equal to mg. So from this Vt comes out to be mg divided by 6 pi eta r. So the expression for terminal velocity is mg 6 pi eta r, eta. So terminal velocity is directly related to the mass of the object, meaning that if you release two objects of different masses from the same height, then the terminal velocity of the heavier mass will be greater than the terminal velocity of the lighter mass. terminal velocity और mass एक दूसरे के साथ directly related हैं. किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, किसी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगी. सो वी टी इज़ अ डायरेक्ट फंक्शन, और टर्मिनल वेलोसिटी जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ जो है वो इनवर्स रिलेटेड है. यानी लिक्विड जितना गाढ़ा होगा उसमें टर्मिनल वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की कम होगी, लिक्विड जितना पतला होगा यानी उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी मॉलिक्यूल्स में, तो उसमें टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी. आपने फर्स्ट ईयर के लैब में ग्लिसरीन में भी आपने एक जो होता है आयरन बॉब जो होता है उसको ग्लिसरीन में गिराया होगा और पानी में गिराया होगा, तो आपने देखा होगा कि ग्लिसरीन में जो उसकी वेलोसिटी है वो कम होगी टर्मिनल, जबकि पानी में उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. बिकॉज वाटर आर हैव लेस स्मॉलर
coefficient of resistance, smaller coefficient of resistivity, smaller coefficient of viscosity, smaller coefficient of viscosity. So smaller is the coefficient of viscosity, greater will be the terminal velocity, and greater is the coefficient of viscosity, smaller will be the terminal velocity. So Vt is a direct function of mass and inverse function. R के साथ ताल्लुक अभी क्लियर नहीं है क्योंकि R मौजूद है मास के अंदर, वो अभी हम आपको दिखा के दे देते हैं. As we know that for droplet of uniform density, मास जो होता है क्या होता है, मास रो वी यानी डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है. ये V जो है ये वॉल्यूम के लिए है, दैट V इज वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी ऑफ द droplet. So rho is equal to density of spherical droplet and V is equal to volume of the droplet, which is equal to 4/3 pi r cube. चूंकि spherical object के लिए कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम 4 by. So mass क्या आ जाएगा, rho multiplied by 4/3 pi r cube आ जाएगा. Rho multiplied by 4/3 pi r cube, that will be the mass. Put this mass in equation 1. This is equation 1. You see, now I put that value in this equation. So what we get, Vt is equal to 2/9 rho g r square by eta. Vt 2/9 rho g r square by eta. So Vt is a direct function of r square. Vt is a direct function of r square. Vt is a direct function of density. Vt is the inverse function of coefficient of viscosity. ये है आपके पास. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं 2/9 रो जी आर स्क्वायर बाई ईटा. यहाँ पर जो हम कहते हैं ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी वो ड्रॉपलेट की डेंसिटी होगी. फ्लूइड की डेंसिटी ये क्या होती है, अब फ्लूइड की डेंसिटी की चेंज करने से भी टर्मिनल स्पीड क्या होती है, वो चेंज होती है. ड्रॉपलेट की डेंसिटी चेंज करने से भी वो चेंज होती है. तो दैट बेसिकली दैट डेंसिटी इज़ फॉर द ड्रॉपलेट और फॉलिंग ऑब्जेक्ट. देखो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है. टर्मिनल वेलोसिटी वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो कि एक ऑब्जेक्ट अटेंड कर लेता है जब वो फ्लूइड में क्या करता है, मूव करता है. और वो कब अटेंड करता है, जब वेट ऑफ द बॉडी और अपोजिशन ड्रैग फोर्स आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो बॉडी यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना शुरू करती हैं. और उस यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं. टर्मिनल कहते हैं यानी बिल्कुल कट जाना, यानी इसके बाद वेलोसिटी में मज़ीद तग़य्युरात या चेंजेस नहीं आते. डायग्राम को देखो, यहाँ पर पॉइंट ए है. पॉइंट ए पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है. जब वेलोसिटी 0 है तो फिर क्या है, वेलोसिटी 0 है तो ड्रैग फोर्स 0 है. और नेट फोर्स अभी बॉडी पे जो अमल कर रहे हैं वो क्या होगा, सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू mgo ए फोर्स. जब ये नीचे आना शुरू करता है तो एयर के मालिक्यूल उसके साथ टकराते रहते तो ड्रैग एयर ड्रैग अपवर्ड हो जाता है. जब एयर ड्रैग अपवर्ड होता है तो फिर क्या होता है, एयर ड्रैग जब अपवर्ड होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज़ करता है. जब वेलोसिटी इंक्रीज़ करती हैं, ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज व्हेन द वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग. चूँकि जब नीचे आता है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ करती हैं. तो अब यहाँ पर एफ डी है और यह एम जी है तो नेट फोर्स उस पर अब क्या होगा, नेट फोर्स उस पर सिग्मा एफ एम जी माइनस एफ डी होगा. तो उससे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, एम जी माइनस एफ डी बाई एम, यानी अब ये एक्सेलरेटेड रीजन है. लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाएगा, ये देखो कि ये ड्रैग फोर्स और वेट क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे. और जब बराबर हो जाएंगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी, और यहाँ पर यहाँ से लेकर ज़मीन तक पहुँचने तक ए क्या होगी, 0 होगी. ए विल बी 0, ए विल बी 0. तो ए क्या होगी 0. अब नेट फोर्स उस पर क्या हो जाता है 0. तो देखो एफ डी इज़ इक्वल टू एम जी आ जाएगा. तो वी टी इज़ इक्वल टू एम जी बाई 6 पाई ईटा आर. और अगर हम कहें कि मास जो होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम जो होता है चूँकि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर है. तो m इज़ इक्वल टू रो वी और ये रो मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा. इससे आपके पास वी टी आ जाएगा 2/9 रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ईटा. तो टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस पे डिपेंड करता है
डेंसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट पे डिपेंड करता है, जो गिरने वाला ड्रॉपलेट है। विस्कासिटी ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करता है कि इसकी विस्कासिटी कितनी है, इंटरमालिकुलर फोर्स कितना है, ज़्यादा है या कम है। देखो इसके फ़वाइद जो हैं क्या है टर्मिनल वेलोसिटी की। ये देखो बारिश, तकरीबन बादल जो बनते हैं वो 2 किलोमीटर के हाइट पे या किलोमीटर या 2 किलोमीटर के हाइट पे बनते हैं। तो जो बारिश के कतरे जो नीचे आ रहे हैं, अगर एयर ड्रैग ना होती, अगर हवा ना होती, तो आप उसको कैलकुलेट कर लो फार्मूले से, v इज इक्वल टू 2gh अंडर रूट से। 2 किलोमीटर को डालो, v इज इक्वल टू 2gh अंडर रूट। एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2000 किलोमीटर, 2000 मीटर, सॉरी 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। क्या मतलब, बादल हाइट 2 किलोमीटर है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अब आप क्या करो, ये कर लो कि इसका वेलोसिटी निकालो। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ज़मीन पे जब पहुंचेगा तो किस स्पीड से पहुंचेगा बारिश का कतरा, v इज इक्वल टू 2gh अंडर रूट। 2gh अंडर रूट, 2g की कीमत क्या है, 9.8 है, और आप h 2 किलोमीटर आपने लिया तो 2000 मीटर अंडर रूट ले लो, तो तकरीबन 200 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 200 मीटर पर सेकेंड, जो कि बुलेट की स्पीड से भी ज़्यादा है। आप जब गाड़ी तेज़ चलाते हैं कहते हैं 120 हो तो बहुत हाई स्पीड में, तो 120 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड मिलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। 200 मीटर पर सेकेंड से ये बारिश का कतरा आएगा, तो 200 मीटर पर सेकेंड से आएगा तो क्या लाइफ पॉसिबल होगी? देखो अल्लाह के करिश्मों को, अल्लाह के करिश्मों को देखो कि ये ड्रैग फोर्स डेवलप कर दिया। एयर है तो एयर क्या कर लेता है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो बारिश के कतरे आते हैं तो क्या होता है, वो एयर ड्रैग उस पर अपवर्ड अमल करते हैं और वेलोसिटी को क्या करता है, कम करता है। एक वक्त आ जाता है कि वेलोसिटी बिल्कुल एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाती है और वो कांस्टेंट हो जाती हैं, तो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होती। ये जो आपने वो कौन सा वाबाबील वगैरह का तस्करा मेरा कुरान शरीफ में जो है कि पत्थर ये जो गिरते थे या बारिश के कतरे वगैरह या जो गिरते थे, कंकरियाँ वगैरह जो गिरती थी तो हाथियों के सरों में सुराख करते थे, वो करते थे। तो शायद अल्लाह ताला ने ड्रैग फोर्स को उस वक्त क्या किया हो, ख़त्म किया हो, तो वो जिस स्पीड से आ रहे थे तो वो सारे उसमें क्या कर रहे थे, पेनेट्रेट कर रहे थे और ये सारे जो हैं पड़े हुए थे। तो ड्रैग फोर्स इज़ प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन योर डेली लाइफ। स्विमिंग हो, जिमनास्ट हो, स्कीइंग हो, हर एक चीज़ हो उसमें आप देखें ड्रैग फोर्स रोल प्ले करता है। नाउ अगर आप उसको उसकी वेलोसिटी के बारे में कि ये जो है इसकी टर्मिनल वेलोसिटी का प्लाट अगर आप देखना चाहते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी का प्लाट ये देखो, ये वेलोसिटी का है एक्सिस है और ये टाइम का एक्सिस है। इब्तिदा में जब कोई चीज़ गिरती है तो इब्तिदा में देख रहे हो वेलोसिटी बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, और एक वक्त ऐसा आ जाता है जब वेट और ड्रैग फोर्स बराबर हो जाते हैं तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, देख रहे हो, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को हम फिर क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। फ्रॉम सी टू डी द प्लॉट इज टोटली स्ट्रेटन्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल। ये देखो ये वेलोसिटी का प्लॉट है, ये टाइम का प्लॉट है। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है और ये हास लेवल तक बढ़ गई, इसके बाद मज़ीद नहीं बढ़ती। कब नहीं बढ़ेगी, जब वेट और ड्रैग फोर्स आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये है आपके पास क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। फिर उसके बाद मज़ीद चेंज नहीं आती, मज़ीद चेंज उसमें नहीं आती। अब जनाब हम टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाते हैं। यूट्यूब का मशकूर रहना चाहिए, गूगल का मशकूर रहना चाहिए। पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए उसको यूज़ करो, पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए उसको यूज़ करो, ये मेरा रिक्वेस्ट है टू अंडरस्टैंड थिंग्स ईजिली। ओके, लेट्स सी अबाउट द टर्मिनल वेलोसिटी। Video, we're going to look at why falling objects reach a terminal velocity, which is where their velocity remains constant.
so they're no longer accelerating or decelerating. Now, because this topic can be a bit confusing, we're going to run through everything in detail, and then at the end of the video, we're just going to quickly recap it all and summarize the whole thing. Let's start by imagining the moment when somebody steps out of an aeroplane. So that split second when they're stationary in the air. What do you think is going to happen to them? Well, because the person has mass, gravity will be pulling them downwards towards the Earth, which they'll feel as a force we call weight. And because the person's mass doesn't change, the magnitude of their weight will always be the same. So this weight arrow is going to stay the same size through the whole video. Now, in this instant that they first step out of the plane, the weight will be the only force that's acting on them. And so the resultant force, which remember is the combination of all the forces acting on an object, will be the same size and direction as the weight, because there aren't any other forces. And so this resultant force will cause them to accelerate downwards. As soon as the person starts falling though, they'll encounter air resistance, which will be an upwards force that acts in opposition to the weight. The air resistance, which is sometimes called drag, is due to the collisions between the person and all the tiny air particles that make up the air. So effectively, as the person falls and bangs into all these tiny air particles, they act to slow the person down. And the size of the air resistance will depend on how many of these collisions there are. Now, this number is going to depend on two main things. The surface area of the person, because the higher the surface area, the larger the area over which the collisions can take place, and the velocity with which the person's moving, because the faster they're moving, the more particles they'll collide with. At the moment, because this person's only just started falling, they won't have accelerated very much, and so their velocity will still be quite low, meaning they're not falling very fast. This means that the force of air resistance acting on them will also be low, which we can show with this small grey arrow that points upwards. Now, the most important thing in this video is to remember that the resultant force acting on the person is just the sum of the weight and the air resistance, which we're showing here by adding together the red weight arrow and the grey air resistance arrow. Because they're acting in opposite directions, the air resistance effectively cancels out some of that weight, and so the resultant force will now be a bit smaller. Notice that the resultant force is still acting in the downwards direction though, so the person will continue to accelerate downwards. As the person's velocity increases though, the force from the air resistance will increase as well, because remember they'll be colliding with more particles, which increases the air resistance. And because their weight is constant, this means that the resultant force will decrease by the same amount as the air resistance has increased. So although they continue to accelerate downwards, the rate of acceleration will fall. We can see all of this if we plot it on a velocity time graph, with their velocity on the y-axis and the time on the x-axis. As time goes on and they fall faster and faster, their air resistance will be increasing, and so the graph starts to get less steep, because the rate of acceleration is decreasing. At some point though, the velocity will get so high and there'll be so many collisions between the particles and the person that the air resistance will increase to the same size as the weight. This means that the two opposing forces, so the weight and the air resistance, will now balance each other out, which means that there'll be zero resultant force, and so the person will stop accelerating. This means that their velocity is zero resultant force, and so the person will stop accelerating.
This means that their velocity won't change anymore. And if it's not changing, this is what we call their terminal velocity. तो जनाब आपने टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में जो थी इंफॉर्मेशन, अब हम आते हैं टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द पैराट्रूपर, हाउ अ पैराट्रूपर अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी. So from the above discussion, it has been cleared that when an object or a body will attain terminal velocity, when the applied force, that is sometime weight, sometime other forces, and the resistive force equalizes each other, then the body will move with a constant terminal velocity, and that constant terminal velocity, that constant velocity is named as terminal velocity of the body. Now come to a paratrooper. When paratrooper just jumped out of the aeroplane or jet, initially the paratroop is not opened, and at the start of downward motion we say that the drag force acting on the paratrooper is 0. Now when the paratrooper is coming downward, air particle collision pushes him upward and the weight is pulling it downward. So there will be net accelerating force in the downward direction. The drag force weight remains the same in this case, but the drag force will be increasing with the increasing speed of the paratrooper. A time will reach when the weight of the body and the upward force becomes equal to each other, then the paratrooper will attain a terminal speed. This is the situation when the parachute is not yet open. So this is the terminal speed number 1. Now when the paratrooper opens the parachute, the drag force of the parachute is in upward direction and retardation started in motion. So that starts to decrease the velocity, and is coming down till again the upward force of the parachute, drag force, and the weight of the person, of paratrooper, equalizes each other. Then in this case the paratrooper will attain another terminal velocity that will be smaller than the first terminal velocity, and then the paratrooper falls towards the earth with that second terminal velocity. देखो पैराशूट वाला बंदा जब जहाज़ से जंप लगाता है तो एट द इंस्टेंट वहाँ पर उस पर कोई फोर्स अमल पैरा नहीं होता, अमल नहीं कर रहा होता. जो ये बंदा नीचे आ रहा होता है, अभी उसने पैराशूट खोली नहीं है, नीचे आ रहे हैं, तो ड्रैग फोर्स अपवर्ड जो है
उसकी बॉडी पे और वेट डाउनवर्ड है तो उस पर नेट फोर्स अमल कर रहा है उस वक्त तक जब तक कि ये दोनों आपस में बराबर ना कर दे, ड्रैग फोर्स और वेट आपस में एक दूसरे को इक्वलाइज ना करें। जब इक्वलाइज हो जाते हैं तो उस पर पहली टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है। ये वो हालत है जब पैराशूट गोली नहीं होती है। अब जब पैराशूट खोल दी जाती है तो वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जो टर्मिनल वेलोसिटी पहले आ गई हैं अब वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और रिटार्डेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। नीचे आते आते एक वक्त फिर आ जाता है कि पैराशूट का अपवर्ड ड्रैग और वेट इक्वलाइज कर लेते हैं और दूसरी टर्मिनल वेलोसिटी क्या कर जाते हैं, इस पे आ जाती हैं। ये दूसरी टर्मिनल वेलोसिटी पहले वाले टर्मिनल वेलोसिटी से कम होती है, इसीलिए पैराट्रूपर जो है वो सेफली ज़मीन की तरफ क्या करता है, लैंड करता है। दिस इज़ हाउ द पैराशूट वर्क्स। अब हम देखते हैं ये चीज़ जो है इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी क्या होती है और उसका थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो क्लिप हम दिखाते हैं आपको पैराट्रूपर के बारे में कि ये है, ये देखो। ये देखो पैराशूट का पहले इंक्रीज पर टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है। फिर जो है आपने जब पैराशूट ओपन कर दिया तो देखो टर्मिनल वेलोसिटी कम 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 कम, देखो कम कम कम, और ये एक वक्त ऐसा आ जाता है कि फिर ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो जाता है तो इसी टर्मिनल वेलोसिटी से ज़मीन की तरफ ये नीचे आता है। The drag force equals the weight. When this happens, we get constant speed. If we open the parachute, we get a massive upward force, a massive drag force, which is very much greater than the weight. This has the effect of putting the brakes on and slowing the parachutist down. As the parachutist gets slower and slower, the drag force starts to equal the weight, instead of it being bigger than the weight, and then we get a new, slower terminal velocity. At this point here is where we hit the ground and suddenly come to a stop. ये आपने देख लिया कि पैराशूट जो है किस तरह का, वो उसका प्लॉट भी आपने देख लिया कि हाउ डज दैट वर्क, ये किस तरह If we take a look at velocity. देखो इब्तिदा में वेलोसिटी क्या करती है। इब्तिदा में जब यानी पैराट्रूपर ने पैराशूट को खोला नहीं होता तो देखो वेलोसिटी इंक्रीज 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 इंक्रीज, और जब वेट ऑफ द पर्सन और उस पे ऊपर वाला फोर्स बराबर हो जाता है तो ये टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है। उसके बाद जब क्या कर लेता है, पैराशूट को ओपन कर लेता है तो ड्रैग फोर्स बढ़ जाता है पहले की निस्बत, क्योंकि पहले सिर्फ बंदा था, अब उसके साथ पैराशूट जो है शामिल हो गया तो बंदे को भी एयर रेजिस्टेंस और पैराशूट का जो है एयर रेजिस्टेंस, तो ड्रैग फोर्स बढ़ जाएगा और तो ये वेलोसिटी को क्या करेगा, रिड्यूस करना, यानी टर्मिनल वेलोसिटी से क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि फिर ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो ये दूसरी टर्मिनल, यानी मतलब ये था कि पैराशूटर जब गिरता है तो दो टर्मिनल वेलोसिटी, एक जब पैराशूट खोला नहीं होता तो ये एक टर्मिनल वेलोसिटी है, जब पैराशूट खोल लेते हैं तो कुछ वक्त के बाद ये दूसरी टर्मिनल वेलोसिटी, फिर इसी टर्मिनल वेलोसिटी से फिर ज़मीन की तरफ आएगा और उसकी जो मोशन क्या होती है वो जो लैंड करेगा वो सेफली लैंड करेगा ज़मीन पे। सो दिस इज़ हाउ द पैराशूट वर्क्स एंड दैट इज़ द terminology behind the paratrooper. Thank you very much. God bless you all.